Good afternoon, students. You are all welcome to Science Vision. We are here again with a new lecture of Unit Second. You have completed first chapter of the Unit Second, so we will start our next chapter now, that is motion in a plane. तो हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सेकंड, दैट इज मोशन इन अ प्लेन. तो फर्स्ट चैप्टर में आपने मोशन के बारे में डिस्कस किया है, बहुत कुछ सीखा होगा, और उसमें जो सबसे पहली चीज़ सीखी होगी आपने ये सीखा कि हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं. एक कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और एक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी, जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वो क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब दीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली specified by its magnitude and units. So scalar quantities are those quantities which can be completely described by its magnitude and units, like temperature. So temperature can be completely described like 20 degrees Celsius. So we only need magnitude and its units, and nothing is required. Only these two things are required, magnitude and units. And what are vector quantities? Which can be completely described by its magnitude as well as direction and units. So to describe vector quantities, we have to specify direction also. So for example, displacement, velocity, and many more. Okay, so let's discuss about some displacement, distance and displacement, and then we will move to our topic which is related to this thing which I am discussing now. Displacement. So consider 1 meter distance A, B, C, and A, B, C, 1 meter. In this case, the total path covered is given by AB and plus BC. And that comes out to be 2 meter. And in this total path covered, is equal to AB plus BC is equal to 1 plus 1 is equal to 2 meter. So same case. But if we are, and this total path covered is known as distance. This is known as distance. But if we are interested only कि how much path is covered between initial and final point, if we are interested only this thing, so in this case, first case, the distance path covered in between, so initial point is A and final point is C, so this is the path covered between AC, and AC is the path covered between initial point and final point, and that comes out to be 1 plus 1 is equal to 2 meter. And in this case, the path covered between initial and final point is not this, but actually this is the path which is covered between initial and final point, and we are interested only in this point. So in this case, the AC is how we can calculate AC? Basically it is a right angle triangle, you can see, so we can apply Pythagoras theorem. So it's 1 square, AC square is equal to 1 square plus 1 square, which is root 2, and AC comes out to be root 2. And we know this path covered is known as displacement.
and we know कि this distance is known as displacement. So you can see अगर हम इस पास से जाएं चाहे इस पास से जाएं, जो हमारा डिस्टेंस है उसकी वैल्यू 2 मीटर ही है दोनों केसों में, दोनों केसेस में दोनों की वैल्यू 2 मीटर ही है, चाहे हम स्ट्रेट लाइन में जाएं चाहे हम अपनी डायरेक्शन को बदल लें। हम पहले ए से बी गए और फिर बी से सी गए, और इस केस में हम ए से बी गए और बी से सी गए। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो आप देखोगे कि अगर हम ए से बी और बी से सी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो आंसर 2 मीटर आ रहा है। पर अगर हम ए से बी और बी से सी जा रहे हैं, डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से कि डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, does not depend upon the direction, and displacement depends upon the direction. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट, direction is also needed. So this mean distance कौन सी कैटेगरी में चला गया? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में चला गया, कौन सी कैटेगरी में चला गया? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी में चला गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे ही हम किसी भी चीज़ों को लाइक स्पीड, वो कौन सी कैटेगरी में चली जाएगी? स्केलर क्वांटिटी में। और जो हमारी वेलोसिटी है वो किस कैटेगरी में चली जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी में। अब जैसे मैंने बोला कि मेन चीज क्या है, तो मेन चीज क्या है कि हाउ टू डिस्क्राइब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, हाउ टू डिस्क्राइब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। And we know scalar can only be described by its magnitude plus units, and vector quantities are described by magnitude plus direction plus units. So now we will study this vector, representation of vector in detail. Representation of vector in detail. So be with me students. ये चैप्टर और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये चैप्टर डिसाइड करेगा कि हम +2 तक की या उससे भी हायर स्टडीज तक की फिजिक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वेक्टर की नॉलेज है तो हम फिर फिजिक्स का आगे जा सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। और अगर हमें वेक्टर्स की नॉलेज नहीं है तो फिर हमारे लिए मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करना है। तो बी विद मी, मेरे को ध्यान से सुनना है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाना है। तो हम अब वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं वापस उसी एग्जांपल पे जाता हूँ जो मैंने अभी दिया आपको, कि हमारे पास एक पार्टिकल था जो ए से बी गया और बी से सी गया, और अगर एक पार्टिकल था जो ए से बी गया और फिर बी से सी गया, और दोनों केसों में आपने डिस्टेंस में तो ऐड कर लिया, डिस्टेंस सीधा ऐड कर दिया 1 मीटर, तो डिस्टेंस क्या आया 1 + 1। और इस केस में भी डिस्टेंस क्या आया, ये दोनों 1 1 है, इस केस में भी डिस्टेंस क्या आया 1 + 1 आया। तो इसका मतलब डिस्टेंस को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, वो चाहे कोई भी डायरेक्शन में गया हो। पर अभी आपने देखा कि आप डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये वाला वेक्टर था, जो ये वाला लेंथ थी, पाथ था, डिस्प्लेसमेंट को आप डायरेक्टली ऐड कर पाए? वहां पे नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में थे। तो आंसर क्या आया? √2। कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से। तो √2 आया जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकाला गया।
तो इसका मतलब हम वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि वेक्टर क्वांटिटीज कांट बी एडेड लाइक स्केलर्स, कांट बी एडेड लाइक स्केलर्स। तो हम 2 + 3 5 नहीं कर सकते अगर वो ये 2 और 3 इन डिफरेंट डायरेक्शन है। अगर ये 2 और 3 सेम डायरेक्शन में हैं, लाइक दिस एग्जांपल, इसमें भी 1 मीटर इधर था और अगला 1 मीटर भी उसी डायरेक्शन में था, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। और इस केस में भी वो डायरेक्टली ऐड हो सकती है क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है। पर अगर दो क्वांटिटी, कोई ऐसी क्वांटिटी है जो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम एक लड्डू प्लस एक लड्डू इज इक्वल टू 2 लड्डू कर सकते हैं, पर हम एक लड्डू प्लस एक जलेबी, ये क्या आने वाला है? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? हमें ये तो पता है कि मतलब 2 मिठाई होंगी हमारे पास, पर हम इसमें ये ऐड नहीं कर सकते। तो सेम अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो डिफरेंट डायरेक्शन में है, हम उसे ऐड नहीं कर सकते। हम उसे तभी ऐड कर सकते हैं जब वो एक ही डायरेक्शन में होंगी। तो फिर अब हम वेक्टर्स को कैसे, मतलब वेक्टर यानी कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इनको ऐड करने का तरीका, ये देखना पड़ेगा कि हम कब चीज़ों को ऐड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं। तो हमारे पास ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, XY कोऑर्डिनेट फ्रेम ड्रॉ किया। इट इज नोन एज XY कोऑर्डिनेट फ्रेम। आपने छोटी क्लासों में या 9th-10th क्लास में ग्राफ बहुत बनाए होंगे। तो XY कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये हमारी X एक्सिस है, ये हमारी Y एक्सिस है। हमारे पास पहले क्या होता था, पहले डायरेक्शंस होती थी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम ऐसे कहते थे कि एक पर्सन पहले ईस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो वेस्ट की तरफ चला गया, फिर वो साउथ की तरफ आ गया। तो इस तरह से मोशन चलता था कि ईस्ट वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, हमारा सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में ढलता है। तो इस तरह से चलता था। पर अब हम अपनी डायरेक्शंस को किस अकॉर्डिंग लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस की अकॉर्डिंग लेते हैं इन फिजिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे इधर प्लस एक्स एक्सिस है, तो इधर माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। ये अगर प्लस वाई एक्सिस है तो ये कौन सी है, माइनस वाई एक्सिस है। तो अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम या इस एक्स वाई, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल देते हैं। तो प्लेन का मतलब समझते हो आप, एक ही जैसे ये पेज है तो ये एक प्लेन है, बेसिकली 2 डायमेंशनल प्लेन है, क्योंकि इसमें एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो अब हमने क्या करना है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी पी पॉइंट पे है, या कोई पर्सन है जो पी पॉइंट पे खड़ा है। सो एक पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट पी। सो वी कैन टेक अनदर प्रॉब्लम कि पहले एक पार्टिकल यहाँ पे था और उसने अपना मोशन स्टार्ट किया। अभी हम मोशन पढ़ के आए हैं। मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो मान लो कि एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज की और वो 2 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ चला। कितना डिस्टेंस चला, 2 मीटर चला एक्स एक्सिस की तरफ, लेट अस सपोज। और उसके बाद वो 3 मीटर किस साइड चला, वाई एक्सिस की तरफ चला, 3 मीटर इस साइड चला। तो अब वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, पी पॉइंट पे पहुंच गया। ये उसका पी पॉइंट है और यहाँ पे पहुंच गया। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या होगी। देखो, अगर वो 2 मीटर इधर चला है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2 क्योंकि वो 2 मीटर इधर चला है। और फिर यहाँ पे 3 मीटर चला है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0 3, क्योंकि वो 3 मीटर चला है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, x की वैल्यू 2 है क्योंकि वो 2 मीटर चला है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है क्योंकि वो 3 मीटर y एक्सिस की तरफ चला। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 2 3। तो 2 x की वैल्यू है और 3 y की वैल्यू है। तो अब हम इसका डिस्प्ले कैसे लिखें, हम क्या लिखें कि वो कितना चला। तो आप क्या लिखोगे कि वो 2 + 3 टोटल 5 चला, नहीं,
नहीं लिख सकते, अभी हमने सीखा ना, क्योंकि अगर ये दोनों डिस्टेंसेस जो दोनों पाथ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में कवर हुए हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि 2 मीटर डिस्टेंस एक्स एक्सिस में ट्रेवल हुआ है और प्लस 3 मीटर डिस्टेंस वाई एक्सिस में ट्रेवल हुआ है, और हम इसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अब हमें समझ है, क्योंकि देखो एक्चुअल तो वो ओ से पी पॉइंट तक पहुंचा, तो अब ये ओपी क्या होगा, जो ये ओपी है हमने लिखा ये लेंथ कितनी होगी ये देखना है, तो वो तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, हमें पता है। तो ओपी कितना आएगा इस केस में, ओपी कितना आएगा 2 का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज आई थिंक 4 + 9 13, सो ओपी कम्स आउट टू बी √13 मीटर। सो ओपी कितना आया √13 मीटर, तो ये लेंथ कितनी है √13 मीटर। क्लियर है। पर हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें कि 2 मीटर और इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है हमने कि ये पोजीशन कितनी है या पार्टिकल कितना चला, तो वो 2 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ चला और 3 मीटर वाई एक्सिस की तरफ चला। तो हम इसे और अगर आप देखो मान लो कि ये पार्टिकल कहीं और चला जाता है, मान लो इस साइड आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये पॉइंट कैसे पता लगेगा, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, मान लो -x0 आ जाएगा कुछ, और ये पॉइंट कितना आएगा 0 -y आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो पार्टिकल की नई पोजीशन है और ये एरो इस साइड आ गया। ये एरो पे ध्यान दो, ये एरो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरो, तो अब ये एरो इधर आ गया, तो जैसे ही पोजीशन चेंज हुई वैसे ही ये एरो की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो ये आपको समझ आ रहा है कि जैसे ही मैंने पार्टिकल की पोजीशन चेंज की वैसे ही एरो की डायरेक्शन चेंज होगी, पहले वो उस साइड था अब वो इस साइड है। और ये क्या है पोजीशन है, अब ये नए कोऑर्डिनेट्स हो गए कुछ x', y', ये नए कोऑर्डिनेट्स हो गए कुछ x', y'। तो इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसके ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं और ये एरो की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये एरो हमें बता क्या रहा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये एरो हमें क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि वो पार्टिकल कहाँ है और वो कैसे बता रहा है। तो लिखते हैं, हमें ये एरो क्या बता रहा है, ये हमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बता रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बता रहा है। और कैसे बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरा पार्टिकल x मीटर या मान लो 2 मीटर x एक्सिस की तरफ है, प्लस मेरा पार्टिकल 3 मीटर y एक्सिस की तरफ है। तो इस तरह से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो 2 मीटर, देखो इसमें मैंने 2 मैग्नीट्यूड यूज किया, मीटर यूनिट्स चूज किए और एक्स एक्सिस डायरेक्शन बता रही है, तो यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसको हमें उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट्स चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए, और अगर कोई और डायरेक्शन में है तो वो भी ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, है ना, क्योंकि जैसे ही पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज होता है तो उसके लिए फिर ये आपके ये सारा इनमें से दो कोई भी चीज उसकी डायरेक्शन में भी, वो पहले एक्स एक्सिस में था और वाई एक्सिस में चला जाए तो वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और ये एरो बेसिकली हमें बता क्या रहा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ही बता रहे हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हम इस एरो को पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं, इस हम एरो को क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर जो हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन बताए कि वो पार्टिकल 2D प्लेन में कहां बैठा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान से देखो इसको दोबारा से, तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, इट इज अ वेक्टर which can represent
a position of particle in a 2D plane। तो मान लो कि हमारा पार्टिकल कहीं यहाँ है, कुछ x1 और y1 को, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1। तो वो x1 यानी कि x एक्सिस में होगा, x1 डिस्टेंस x एक्सिस में होगा और y1 डिस्टेंस वो y एक्सिस में होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, इस पार्टिकल का जो भी यहाँ है, इसको हम p बोल देते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p क्या आ गया, x1 डिस्टेंस वो x एक्सिस की तरफ है प्लस y1 डिस्टेंस वो y एक्सिस की तरफ है। तो हमें ये समझ आता है। अब पर इसमें आप एक चीज सोचो कि अगर मेरे पास हजारों पार्टिकल्स हों और मैंने उनका पोजीशन वेक्टर लिखना है कि वो सारे पार्टिकल्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक और पार्टिकल है मान लो यहाँ पे, तो वो x2y2 हो जाएगा, तो उसका लिखेंगे x2 x एक्सिस में प्लस y2 y एक्सिस में। तो फिर तो हम, आपको नहीं लगता कि ये हम इतना बड़ा ऐसे ही बार बार लिखते जा रहे हैं, x एक्सिस y एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस, और ऐसे हर पार्टिकल के लिए लिखना पड़ेगा। अब मान लो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जब मैथ डेवलप हो रहा था तब होता क्या था कि मान लो लिखना है कि x + 2 = 3, तो तब ये सिंबल नहीं था हमारे पास। तो हम कैसे लिखते थे कि x + 2 = 3, फिर x = 3 - 2, फिर लिखते थे x = 1। सो ये वे था। और आप सोचो कि हमने अगर ऐसे 10-15 क्वेश्चन करने हो तो हम फिर तो = लिखते ही रह जाएंगे पूरा दिन। तो इस चीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने सिंबल्स बनाना शुरू किया। तो हमने इज इक्वल टू को सिर्फ दो पैरेलल लाइंस, स्मॉल पैरेलल लाइंस के साथ रिप्लेस कर दिया। तो हमारा देखो काम कितना कम हो गया, सिर्फ दो लाइंस ही तो ड्रॉ करनी है। इसी तरह हम हर जो चीज रिपीटिंग हो रही हो, बार बार रिपीट होनी हो, उसके लिए हम शॉर्टकट्स बना लेते हैं, शॉर्ट नोटेशंस बना लेते हैं। तो हमने भी अब x एक्सिस को बताने के लिए एक शॉर्ट नोटेशन बना ली, y एक्सिस को बताने के लिए एक शॉर्ट नोटेशन बना ली। तो वो कैसे बनाई कि उन्होंने ये कहा कि देखो हम एरो ड्रॉ करते हैं, तो ये डायरेक्शन x एक्सिस की है, हमें ये पता है, और ये डायरेक्शन y एक्सिस की है। तो उन्होंने बोला कि x एक्सिस को डिनोट कर दो स्मॉल i कैप से और y एक्सिस को डिनोट कर दो स्मॉल j कैप से। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, वही पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ p पार्टिकल, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, p फॉर पोजीशन, v फॉर वेक्टर। p पॉइंट का वो कैसे लिखा जाएगा कि वो x1 डिस्टेंस है i कैप की डायरेक्शन में, और हमें तो पता है कि i कैप क्या चीज है, i कैप का मतलब क्या है, x एक्सिस। तो इसका मतलब x1 डिस्टेंस वो x एक्सिस की तरफ है प्लस y1 डिस्टेंस वो y एक्सिस की तरफ है। तो उसे हम क्या लिख लेंगे, j कैप की तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो हमारा काम कितना छोटा हो गया, सिर्फ इतने में से लिखा गया जो पहले हमें बार बार x एक्सिस और y एक्सिस लिखना पड़ रहा था। अब हमने कुछ भी लिखना है, मान लो आपने ये लिखना है, मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखो x नेगेटिव है, इसमें -2 है, और y क्या है, 3 है। लेट अस सपोज ये क्या है, -2 है, और ये क्या है, 3 है, -2 और 3। तो अब आप इसके पोजीशन को कैसे लिख सकते हो, मान लो ये क्यू पार्टिकल है कोई, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि वो x एक्सिस में -2 है, और x एक्सिस का सिंबल क्या है, i कैप, और y एक्सिस का सिंबल क्या है, j कैप, तो 3j कैप। और ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव x एक्सिस में है। आई कैप के साथ नेगेटिव नहीं लगाना, क्योंकि वो हमने उसके नंबर के साथ ही लिख लिया है नेगेटिव साइन, पर आई कैप एज इट, आई कैप का मतलब क्या है, इट आई और जे कर क्या रहे हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, डायरेक्शन के लिए यूज किए गए हैं, यूज फॉर डायरेक्शन। तो आई कैप किसकी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की है, और जे कैप किसकी डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की है।
तो ये पॉइंट समझ आता है। इनका अपना कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इनका काम क्या है, डायरेक्शन को बताना। इनका इन टर्म्स के साथ कोई लिंक नहीं है, दे आर ओनली जस्ट देयर फॉर डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन। सो अब हम इसका मतलब हम किसी भी पार्टिकल, लेट अस सपोज हमने किसी ए पार्टिकल को लिखना है, ए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, एक्स आई कैप, एक्स मीन्स कि वो एक्स कंपोनेंट कितना है उसका, प्लस वाई जे कैप। सो दिस इज द जस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ position vector of a particle. So we can represent any particle. So if I give a question to you, keep this is -3, this is -3, this is our point M. So question is write the position vector of M particle. जल्दी से लिखिए, बताइए क्या होएगा। तो ये क्या आने वाला है कि लेट, सो दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर, दिस एरो इज आवर पोजीशन वेक्टर, सो इट इज OM। सो OM वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाएगा, देखो एक्स एक्सिस में कितना है वो -3, तो -3, और किस में एक्स एक्सिस में है तो -i कैप, ठीक है, एंड प्लस वो वाई एक्सिस में भी है, कितना है -3, और कौन सी में है, वाई एक्सिस में है तो जे कैप, सो इट बिकम -3i कैप -3 j कैप। सो दिस इज द स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल M। गॉट इट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल कि हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल। लेट अस सपोज आवर पार्टिकल इज देयर 4 and 5. The value of x is 4 and value of y is 5. So write the position vector of this particle n. So this arrow gives the position vector, so this arrow is the position vector, so ON. So how we can write ON? ON can be written as 4i cap, मतलब x axis में कितना है into i cap plus y axis में कितना है into j cap. So this j cap gives the y axis and this I gives the x axis. Got it, students? So this is the way to represent position vector of any particle. अभी हमने, अगर आपने देखा हो तो हमने लिखा कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और आप ध्यान से देखो तो मैंने 2 को i के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, और अगर i कैप की कुछ वैल्यू हुई, लेट अस सपोज कि i की वैल्यू 2 है, तो आपको नहीं लगता कि फिर तो ये वैल्यू टोटल 4 हो जाएगी, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो 2 थी वो i की वजह से 4 हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी एक्चुअल वैल्यू तो 2 ही है और वो 2 ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब हमने i की वैल्यू क्या लेनी है, ताकि, क्योंकि i का काम क्या है यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्शन बताना, इसका काम है सिर्फ डायरेक्शन बताना, तो ये बीच में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए हमारे मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसका खुद का मैग्नीट्यूड इस तरह से होना चाहिए कि हमारे मैग्नीट्यूड को इफेक्ट ना करे। तो वो कितना होगा मैग्नीट्यूड, आप बता सकते हो अब तो वो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ताकि ये हमारे इस वाले मैग्नीट्यूड को अफेक्ट ना करे। सो दैट्स वाई मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, कि वैल्यू जो आई कैप की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, magnitude of j cap is also 1. So students, you got that कि these are, because these are describing the directions, and those, so these are vectors, and I, j are vectors with the magnitude 1, with the magnitude 1. So we can define a new term, that is unit vector. That is unit vector. A vector whose magnitude is 1 is known as unit vector. Is known as unit vector. So student, I think it is clear to you now. If but the question is कि how to find the
magnitude of vector firstly, then we will define a unit vector. So let us firstly learn how to calculate the magnitude of vector. So draw this again. There is 2 3 and this is our position vector. So this is 2 and this is 3. This length is 3 and this is 2, and this is the length of the vector, position vector. This OP is length of a position vector, and it is known as magnitude of position vector. Magnitude of position vector. So how we can calculate this length? By Pythagoras theorem. So 2 square plus 3 square root. So this gives you the magnitude of position vector. So students, I think it is clear to you ki how to calculate the magnitude of any vector. Just firstly write the position vector, that is 2i cap plus 3j cap, and then magnitude is 2 square plus 3 square, and that is 4 plus 9, and that is root 13 units. So this is the way to find the magnitude of any vector, and you can see the magnitude comes out to be root 13, which is not is equal to 1. So this position vector is not a unit vector. It is not a unit vector. So I think it is clear to you. So let's just try with this position vector. 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap, and find the magnitude of this vector. So magnitude is equal to 1 by root 2 the square and 1 by root 2 ka square, and it comes out to be half plus half, which is root 1, which is 1. So you can say magnitude comes out to be 1. So this position vector is a unit vector. I think it is clear to you now. So if we try this, just write a position vector, any position vector, 2i cap plus 3j cap, and we discover that its magnitude is equal to root 13 units. So if I divide this vector with this magnitude, so there is new position vector dash 2 by root 13 I cap plus 3 by root 13 j cap. So I am just dividing a vector with its magnitude, and now find its magnitude of this new position vector. So magnitude of new position vector. So that is 2 by root 13 the square plus 3 by root 13 ka square, which comes out to be 13 by 13, and answer comes out to be 1. So this means now the new position vector is our unit vector. So you have seen now if a vector, position vector or any vector, just let us it's a vector, if it is divided by its magnitude, then it become unit vector. So we can define unit vector, a vector whose magnitude is 1, that is unit vector, and how we can find write a vector and divide by its magnitude, then it will become unit vector. And what is the representation of unit vector? A vector cap. So this is the representation of unit vector. This cap represent unit vector like I cap, j cap. So this cap is the notation for unit vector. So a cap is equal to 2i cap plus 3j cap, and its magnitude is root 13. So it's our way to find the unit vector. So try this question at your home. If you have a vector, that is 3i cap minus 2j cap, a vector is equal to 2i cap minus 5j cap,
and find their unit vectors. Find their unit vectors. Try yourself, and if you don't get the answer, then ask me on a WhatsApp. Or so read about it. Stay home, stay safe. Thanks for watching.